हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जतिन चौधरी और मैं ईचाई वेंचर्स का को-फाउंडर हूँ। 3 एपिसोड के पहले हर्षा ने होस्ट किए थे, इस बार मैं वापस आई एम बैक। आज हमारा थीम है फिनटेक फाउंडर स्पेशल, और ये जो सीरीज़ हमारा जो हो रहा है रेडियो एलजे 90.8 एफएम में, बातें स्टार्टअप की, जहाँ पे हम लोग हर बार अहमदाबाद के अलग-अलग फाउंडर्स को लेके आते हैं जो अपना स्टोरीज बताते हैं। आज का थीम है फिनटेक फाउंडर स्पेशल। सो विश्वजीत जो क्विको और सैंडबॉक्स के फाउंडर है, और अभिषेक जो नापबुक्स के फाउंडर है, जो हमारे साथ है। So both of you, thank you so much for accepting our invite. Thank Absolutely. you for inviting us. विश्वजीत, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से पढ़े हो? When did you start this business? Jatin, I am what you call a thoroughbred Ahmedabadi. So I remember all the different decades that I grew up in Ahmedabad. In between, for 10 years, I moved to US, just like a lot of kids out of Ahmedabad in search of job opportunities move. Came back to India in 2013. I'm an engineer, computer engineer, and I've been building Quico and Sandbox for last 11 years. Okay. और जो आपने जो पॉइंट था जब क्विको स्टार्ट किया, उस पॉइंट पे यू आर वर्किंग समवेयर एल्स, फिर आपको आइडिया है कि मुझे स्टार्ट करना है, फिर इंडिया जाऊंगा, या इंडिया आ ही गए थे और ये बिजनेस आइडिया कैसे वो ट्रांजिशन हुआ? Absolutely. अपना multiple time discussion हुआ है. For me, it wasn't a eureka moment, and I think for most founders it is not. So I didn't know when I moved back that I wanted to do a startup in the first place. I didn't know much about startups. I wasn't back in India. You know, if you are in US, you are mostly chasing visa, so you never look outside of that box, right? So when I moved back, all I wanted to do was, figure out what I wanted to do, and showing up every day kind of led to one idea and then another idea, and that's how I picked up Quico. The simple pitch is, if I ask you to name 5 e-commerce platforms, it's $150 billion GMV market, and you'll name 15. But Indian government collects $500 billion worth of taxes, and if I ask you to name 5 tax platforms, you won't be able to name it. So that's the void we are trying to fill. Okay. और जब आपने स्टार्ट किया था, that was in 2015. 2015, तब क्विको क्या था और इनिशियल क्या किया आपने? Absolutely. Oftentimes, जो youthful naivety होती है, जो necessary भी होती है founder के लिए in order to attempt something insane, right? So I thought कि in US, working for 8-9 years, I had filed my taxes myself. So when I moved back and talked around, nothing like that existed. So I thought that would be a good problem statement to solve. I tell sometimes जतिन के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिमेट्रिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो बाहर से ही दिखते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, एंड टेक्स है ना वो आइसबर्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. व्हेन यू स्टार्ट यू ओनली सी अ वेरी स्मॉल टिप ऑफ इट. सो टुडे लाइक यू सेड, क्विको के थ्रू हम लोग अबाउट 25 लाख रिटेल कस्टमर्स को सर्व करते हैं. थ्रू सैंडबॉक्स अराउंड 1000 एंटरप्राइजेस नाउ यूज कर रहे हैं. वी रिसेंटली टच 1000 एंटरप्राइजेस. And we are now also building something called Quico Pro, which is an AI-powered advisory for chartered accountants. So if you can, look at it, individuals के लिए, small, medium, large-size businesses के लिए, and then chartered accountants who serve those customers, उनके लिए भी हम लोग products and platforms आज build करते हैं. Okay. और टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अभिषेक इज अ सीए. अभिषेक, अपना बैकग्राउंड सीए, तो आप सीए फर्स्ट ट्राई में हो गए थे सीए या 2-3 ट्राई करने पड़े? रैंक होल्डर. अच्छा, रैंक होल्डर. वाह. अपने बारे में थोड़ा बताइए, कैसे नाम बुक स्टार्ट किया आपने? So basically जब सीए कर रहा था तभी से I had one problem which was छोटी और मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस में हमेशा टेली यूज होता था. छोटी क्या, इवन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन एट दैट टाइम 2008 to 11-12, everyone was using tele as in their accounting software. तब हमें ये सबसे बड़ा इशू होता था कि when you do some work on a database, टेली के ऊपर आपने कुछ काम किया, आपने कुछ एंट्रियां की, आपने कुछ फाइनलाइजेशंस किए, एंड नेक्स्ट ईयर वो वाले फाइनलाइजेशंस दिखते ही नहीं थे क्योंकि अकाउंटेंट ने वो रेप्लिकेट नहीं किए होते थे. तो बहुत सारी रिडंडेंसी आती थी डेटा के अंदर. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी क्लियर कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे ये डेटा की रिडंडेंसी खत्म हो. Then we started NapBooks as an accounting solution company where we were building the accounting software for businesses. हमने वो इनिशियल 3 साल किया. 3 साल करके हमने हमारा जो सोल्यूशन बनाया, 2017 में हमने सोल्यूशन लाइव किया था बिफोर जीएसटी, एंड पोस्ट जीएसटी वी वर द फर्स्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रेडी विद द जीएसटी इंजन. जीएसटी आने के बाद फिर एक टेंडर आया जीएसटीएन का, जहाँ पे वो उन्होंने इंडिया के 400 प्लस सॉफ्टवेयर वेंडर्स को कनेक्ट किया एंड उन्होंने उनसे कहा कि आप लोग चाहें तो ये टेंडर में पार्टिसिपेट कीजिए.
where we will provide the software to the taxpayers who are having turnover of less than 1.5 crores. At that time, that number was 75 lakhs. So we thought of that this can be a key eureka moment for the solution. Already the solution is picking up in the market. तो हमने वो किया, and then the journey started. From there we did some partnerships, and then Reliance Jio offered us to acquire. वहाँ से फिर हमने वो पार्टनरशिप को फ्रूटफुल काम करते गए. कुछ बैंकों के लिए हमने सोल्यूशन बनाए जो बैंक आज भी एज अ वेंडर पेमेंट सिस्टम यूज करती हैं. And from there, our journey in a as a digitalization entity started, and right now we are doing multiple projects of government digitalization as well as enterprise digitalization. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. आपने बताया कि जैसे अपने बहुत सारे सीए फ्रेंड्स हैं, सबको टेक्नोलॉजी स्पेस में जाना है, और आपने बुक्स एज अ टेक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया, तो टेक टीम कैसे बनाया? सर मेरे साथ ये अच्छा था कि मेरे ब्रदर जो थे वो ऑलरेडी आईटी इंजीनियर थे, एंड ही हैज डन हिज MBA IT फ्रॉम सिम्बायोसिस. सो वो आईटी बैकग्राउंड था हमारे पास, तो डे वन से हमारे को फाउंडर लाने दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ी. बहुत सारे सीए आज की डेट में टेक प्लेटफॉर्म्स रन करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं. कुछ 10-12 फाउंडर्स तो मैं बता सकता हूँ अहमदाबाद के जो टॉप फाउंडर्स हैं, जो मेरे पास आए थे बिफोर लिविंग देयर established practice to consult whether we should diverge into this or not. तो वो एक बहुत बड़ा कॉल है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में you are always satisfied with what you are doing, what you have been learned to do since when you started your because क्या CA generally लोग बहुत जल्दी चालू कर देते 16, 17 साल, 18 साल की उम्र में. ओके, So वो वहाँ से तो देर आर मेनी इंस्टेंसेस कि जहाँ चार्ट अकाउंटेंट आज टेक्नोलॉजी की तरफ मूव होना चाह रहे हैं. ओके. और विश्व जी, जैसे प्रोडक्ट नहीं, बहुत सारे बिजनेस क्या प्रोडक्ट बना दिया और बेचने चालू कर दिया. इफ इनटेक स्पेस में, गवर्नमेंट रेगुलेटरी वाले स्पेस में एक पार्टी के साथ आपको एंगेज करना पड़ता है. तो आपके केस में वो कैसे था? कैसे गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ कैसे काम करो, गवर्नमेंट सिस्टम्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना, वो आसानी से हो जाता है, या क्या क्या किया आपने इनिशियल डेज में? नो, एब्सोल्युटली. आई थिंक काफ़ी लोगों से मैंने सुना है ऐसे कि अगर आपका रेगुलेटेड बिजनेस है ना, तो आप बिजनेस नहीं रन कर रहे हो, रेगुलेटर रन कर रहा है. राइट. सो काफ़ी चैलेंजेस है रेगुलेटेड स्पेस में. काफ़ी टाइम सी स्टार्टअप्स एज अ फाउंडर, कहीं पे मैंने अभी रीड किया था, लाइफ रिवॉर्ड्स एक्शन एंड नॉट इंटेलिजेंस. राइट. सो एज अ फाउंडर्स वी आर बायस्ड टुवर्ड्स टेकिंग एक्शंस, एंड इफ यू अंडरस्टैंड, तो रेगुलेशन क्या करता है, ऑफन टाइम्स प्रिवेंट्स यू फ्रॉम टेकिंग एक्शंस. Right, so sometimes you have to operate in gray area. What kind of gray areas you think that technologically it's possible? जैसे कि आज for example there are छोटी चीज़ है जिसके लिए टैक्स पेयर्स को, मिलियंस ऑफ टैक्स पेयर्स को कभी गवर्नमेंट पोर्टल्स पे जाके TDS यूटिलिटीज जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, कैप्चर्स है, नेविगेबल नहीं है, वो यूज़ करना है. बट आज विथ Claude and OpenAI, I can easily build an agent and automate it. But should I or not, being operating in a regulated space? तो वैसे challenges है. But I think the good part about it is that can also be your moat. Right? जैसे अभिषेक ने बताया, वैसे there are only 60 or 70 GSPs right now in India. Now India का सारा GST compliance ये 60 GSPs के थ्रू फ्लो होता है. तो once you are जिसको नेपोटिज्म भी बोल सकते हो, इनर सर्कल भी बोल सकते हो, बट एवरीबडी विद देयर क्रेडेंशियल्स एंड मेरिट हैव गॉटन देयर, एंड उसके बाद इट्स आल्सो अ ह्यूज मोट, इट्स हाईली डिफेंसिबल मोट. इनिशियल डेज में कैसे किया आपने जब आप अर्ली स्टेज पे थे? So another thing I should also acknowledge regulators when they are also progressive. I think काफ़ी सारी ecosystems में regulators काफ़ी progressive है. So जैसे कि GST from outright tech friendly बनाया गया था, उसमें clear roles define किए गए थे फॉर टेक इंटरमीडियरीज, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, जिनको आज हम GSPs बोलते हैं, GST सुविधा प्रोवाइडर्स. ASPs के रोल्स डिफाइन थे कि जो एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे इसके अराउंड, उसके लाइसेंसेस वेरी वेल डिफाइंड थे, उसके क्राइटेरियाज वेरी वेल डिफाइंड थे. सेम विथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. राइट. सो if anybody who wants to patiently build in regulated space, regulation does eventually catch up with technology. You will have to be patient.
और अभिषेक, आपने जब ये बिल्ड किया इनिशियली, तो आपका रेवेन्यू कैसे आता था? यानी आप किसको बेचते थे या कैसे एंड business कंज्यूमर्स को वी यूज टू सेल, मतलब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई हैव नेवर आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं जाके लोगों की दुकान पे जाके इम्प्लीमेंटेशन करूं, बट आई हैव डन दैट. आई हैव सोल्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइसेंसेस व्हाइल गोइंग टू द शॉपकीपर शॉप एंड उनको बताना कि हाथ के बिल से ज्यादा जल्दी इसका बिल बनेगा तुम्हारा. And they agreed. मतलब I have sold it more than 2,000 license before we moved to the GST thing. 2,000 लाइसेंस से ज्यादा हमने बेचे थे जो इस मोड से बेचे थे. आज की डेट में ऐसा है कि रेफरल मोड से मतलब once you are getting established, when people acknowledge what you are doing, आपका रेफरल बिजनेस, तो फाइनेंस इंडस्ट्री इज टोटली रन ऑन रेफरल बिजनेस. एक बैंक में मैंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, 3 बैंक को रेफरल दिया उसने, 3 में से 2 बैंक हमसे काम करा रही है. ओके. और यू बीइंग सीए हेल्प्स के सीए नेटवर्क से हो जाता है काम? सीएस के साथ काम करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है. आई हैव मैं आपके साथ काम करने वाला हूँ अभी. नहीं, मतलब सीएस के साथ काम करना, सीएस को कुछ बेचना या सीएस के थ्रू बेचना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दे आर, मतलब वी आर ऑलवेज ट्रेन्ड टू बी वेरी स्केप्टिकल, वी आर ट्रेन्ड टू बी वेरी मीगर. कोई खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, पैसे बचाना एक थॉट प्रोसेस दिया जाता है. तो बिकॉज ऑफ दैट थॉट प्रोसेस सीए के साथ काम करना है इसलिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हर चीज को कम से कम भाव में अच्छी से अच्छी चीज लेना चाहता है. एंड समटाइम्स इट इज नॉट फिजिबल. ओके. तो आपने खुद ही ग्राउंड पे जाके मेहनत करनी पड़ी, सीएस से झगड़ना पड़ा कि भाई ये सोल्यूशन भी काम आ सकता है. एंड वंस द सीएस सीज द यूटिलिटी ऑफ इट, उनको एक बार यूटिलिटी समझ में आ गई, उसके बाद फिर उनके लिए देयर इज नो स्टॉपिंग. ओके. और विश्वजीत, वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स अबाउट बिल्डिंग टीम्स इन अहमदाबाद. जब आप यूएस से आए, आपने आइडेंटिफाई किया कि क्विको का एक अपॉर्चुनिटी उस पर आप बिल्ड करेंगे. तो वो जो इनिशियल टीम है वो कैसे बनाया, कैसे आइडेंटिफाई किया, कैसे हुआ? इट्स वेरी फनी. अभी रिसेंटली मैं शेयर कर रहा था अपनी टीम के साथ. 2015 फील्स लाइक एजेस अगो. एंड जब अभिषेक ने बोला कि आपने 2011-12 में चालू किया, तो आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जिसने भी उस टाइम पे बिल्ड किया स्टार्टअप. मेरा आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट हायर था थ्रू गुजरात समाचार एड. I just come back from US. I didn't know how to. I didn't have any network local. That was my first hire. My second hire was my neighbor's son. तो गुजरात समाचार में आपने ऐड दे दी? ऐड दे दी. Software engineering. And I hired my first engineer, a fantastic engineer, in fact. But my second hire was my neighbor's son, and the next few hires were his friends. Right. So oftentimes you have to start like that. Unfortunately, I didn't have a CA brother that I could directly hire as co-founder. Right. So I tapped into my network. And I found few CA friends who were, interested in technology. So that was very early team. I think there are few important milestones, right? जैसे कि हम oftentimes product market fit की बात करते हैं. तो I think as a founder, if you want to hire good people, these milestones just like investor को attract करने के लिए important है, वैसे talent को attract करने के लिए भी बहुत important है. तो एक product market fit हो गया कि जहाँ पे आपका product market में बिक रहा है, and there is demand for it, and customers are identifying कि ये चीज़ की ज़रूरत है and are willing to pay for it, right? That's product market fit. Number 2, if you get validation from a good bona fide investor, right? If you raise a small seed round, then that also spreads a lot of awareness, especially जो startup talent है, जो angel list and ये community से काफ़ी frequently आता है. There people are usually looking out for this kind of news and things like that. So when we raised a seed round from zero, I started getting a lot of applications and people who were culturally fit. ये लोग थे जो स्टार्टअप्स के साथ काम करना चाहते थे, फाउंडर्स ऑफिस में काम करना चाहते थे, फाउंडर्स के साथ काम करना चाहते थे, उनके ट्रेडिशनल रोल से स्टेप आउट करके आउट ऑफ बॉक्स दूसरे रोल्स परस्यू करना चाहते थे. सो दैट्स हाउ स्टेप बाय स्टेप वी बिल्ड द टीम. और आपने जैसे क्विको किया, फिर इवेंचुअली आपने सैंडबॉक्स भी स्टार्ट किया, राइट, व्हिच वाज लाइक अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ व्हाट क्विको वाज. एब्सोल्युटली. वो ट्रांजिशन कब हुआ, एंड देन व्हेन डिड यू रियलाइज कि दिस इज अ मच बिगर अपॉर्चुनिटी? एब्सोल्युटली. सो ऑफन टाइम्स मैंने जोकिंगली आपको भी बताया कि टैक्स फाइलिंग का बिजनेस किसी भी सीजनल बिजनेस जैसा है. अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो मैंगो वाला समर में 3 महीने बेचता है, बट उसके बाद 9 महीने उसके पास कोई धंधा नहीं है, राइट? तो वो फिर होली का बिजनेस करेगा, दिवाली का बिजनेस करेगा, उत्तरायण में पतंग का बिजनेस करेगा, राइट? सो आउट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी के टैक्स, स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस काफ़ी सीजनल है, इनडायरेक्ट टैक्सेस तो फिर भी एवरी मंथ कंप्लायंसेस है.
तो फर्स्ट फ्यू इयर्स वो जो एक बार वो यूथफुल है, वो जो बोलते हैं ना ट्रफ ऑफ सॉरो, वंस वी वर इन दैट फेज, तो वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स कि यार ये ऐसे कैसे धंधा बिल्ड होगा कि 9 महीने बिल्ड करेंगे, 3 महीने कस्टमर्स सर्व करेंगे, दिस डजंट मेक सेंस. सो बट थॉट प्रोसेस था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट राइट है, इसमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, इसी पे फोकस करने की ज़रूरत है. सो एज अ इंजीनियर व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कुड डू कि भाई आपने गाड़ी बनाई है तो उसका इंजन बेचना चालू कर दो बाहर वालों को, राइट? तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग. सो सैंडबॉक्स इज जो टेक्नोलॉजी फाउंडेशन है जिसके ऊपर क्विको बिल्ट हुआ है, तो वी स्टार्टेड गिविंग इट आउट टू अदर पीपल एंड पीपल एक्सेप्टेड इट, पीपल स्टार्टेड पेइंग फॉर इट, एंड इवेंचुअली आफ्टर कपल ऑफ years we formalized it into a business called Sandbox. ओके, उसका बिजनेस मॉडल कैसे होता है? So Sandbox is a अभी बोलना थोड़ा everybody is bashing down on SaaS, but it's a B2B SaaS, right? Everybody is saying SaaS is dead, but vertical SaaS and horizontal SaaS, all those conversations. But it's a B2B SaaS essentially. If I'm Amazon, if I'm Airbnb, if I'm Coinbase, I want to do business in India. मेरे को इंडिया के टैक्स लॉस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, एंड बिकॉज मैं बाहर से आ रहा हूँ तो ऑफन टाइम्स मेरा फुटप्रिंट काफ़ी छोटा है इंडिया में. मेरा टीम काफ़ी छोटा है. जैसे कि हम लोग एयरबीएनबी के साथ काम करते हैं, उनका इंडिया टीम इज हार्डली 15 to 20 पीपल, राइट? नाउ विद दैट headcount, how can you be compliant? The business is still big, right? So the natural extension, natural places to look for is automation. कैसे टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जा सकता है, तो वैसे कस्टमर्स हमारे पास काफ़ी आते हैं. The model is that we build and sell APIs. कस्टमर्स इसको कंज्यूम करते हैं अपने वर्कफ्लोज में, बैक ऑफिस में, कस्टमर ऑन बोर्डिंग में, इनवॉइसेस जनरेट करने के लिए. लाइक आप अगर ट्रेडिंग करते हो ना, आप अगर कहीं जीरोदा से या एंजल से PNL डाउनलोड करते हो तो वो कहीं पे बैकग्राउंड में सैंडबॉक्स से जनरेट होता है. तो एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के जहाँ पे टेक्स इज पार्ट ऑफ दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड यू कैन सॉल्व इट थ्रू API, वी सॉल्व इट, एंड मीडियम टू लार्ज बिजनेसेस यूज दैट. ओके, अभिषेक, आपने नापबुक्स की स्टोरी बताई, फिर नापबुक्स का इंटरेस्टिंग जर्नी आया कि आपने स्टार्टअप IPO किया, तो आपको कब रियलाइज हुआ कि अब IPO से रेज कर सकते हैं आप? नहीं, अभी फैमिली ऑफिस से या बाकी भी मोड से फंड रेज करने के, उससे भी कर सकते हो. IPO करने का स्टार्टअप IPO कभी भी मतलब फर्स्ट मतलब स्टार्टअप IPO करना वाज नॉट द टास्क. फंड रेज इज नॉट द मेन मोटिव ऑफ डूइंग एन IPO, मतलब startup IPO at that point of time. It was the recognition, because what we were. कौन से साल में था? It was in 2021. We were the first startup from the Gujarat ecosystem to get listed. So the thing was कि we wanted to. I had already done 13 IPOs of SME companies as a consultant to them. I understood the whole ecosystem. The best benefit of the IPO was when you are sitting in front of a big corporate or a big bank or a government entity. You are a listed company, that makes a different kind of atmosphere in that room. And if you are not a listed company, the atmosphere is totally different. So at that point of time, we thought of कि भाई अगर हमको अब ये जो normal business है, इस एक्टिविटी से बढ़ना है, गवर्नमेंट डिजिटलाइजेशन की तरफ हमने सॉल्यूशंस बनाने चालू कर दिए थे. कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बना रहे थे जो ओवरऑल इकोसिस्टम में इम्पैक्ट करते थे, मिड एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस को काम आ रहे थे. एट दैट टाइम वी थॉट कि इट्स बेटर टू गो अप फॉर IPO, और IPO वाज जस्ट 4 करोड़ रुपीस, मतलब 4 करोड़ का रेज किया था हमने, 14 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेके आए थे. आज वो 140 करोड़ की वैल्यूएशन पे है. सो दैट वाज मोर ऑफ अ वेल्थ क्रिएशन एंड एक ट्रस्ट बिल्ड करने का तरीका था. ओके, नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग वे टू क्रिएट, क्योंकि बहुत सारे कंप्लायंस से डर के जाते नहीं इस डायरेक्शन में. नहीं, मेरे को कंप्लायंस आता था, इसलिए इट वाज फॉर मी, आई न्यू, मतलब IPO करो या ना करो, कंप्लायंस तो ऐसे भी करना है. तो इट वाज जस्ट सम एडिशनल कंप्लायंसेस व्हिच वी नीड टू डू. ओके, उस टाइम पे एज अ कंसल्टेंट आप कंसल्ट कर रहे थे जो बाकी की कंपनी ने IPO किया, वो खुद का IPO करना था, तब क्या डिस्कवरी किया कि यार ये तो बहुत मुश्किल है? यार देखो, मुश्किल तो बहुत सारी चीजें हैं, और ड्यूरिंग द IPO जर्नी ना, हमने एक सबसे बड़ी चीज जो हमारा आज की डेट में सबसे बड़ा पेन पॉइंट है जो हम सॉल्व कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, वो हमें वही उसी समय मिला. तो E-नोटरी प्रोजेक्ट जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो हमें उसी समय मिला, क्योंकि हमारा IPO हुआ था बिल्कुल भरे कोविड में.
कोविड की एक वेव जाती थी, दूसरी आ जाती थी, वो वाला सिचुएशन था 2021 में। एट दैट टाइम हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट नोटरी टू गेट द डॉक्यूमेंट्स नोटराइज्ड, एंड उसके कारण 3 महीना हमारा आईपीओ डिले हुआ, क्योंकि पहले जब नोटरी के पास गए तो जाने की परमिशन नहीं थी, इस टास्क के लिए कोई जाने नहीं देता था, पुलिस रोक लेती थी, एक साथ 10 लोग एक जगह पे हो नहीं सकते थे, तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो लास्टली जब पूरी वेव खत्म हुई और उसके सेकेंड वेव खत्म हुई, उसके बाद फिर हमें मौका मिला, तब हमने डॉक्यूमेंटेशन किया। तो हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज आया उसमें ये नोटराइजेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अदर देन दैट क्या है, हमने ऑलरेडी काफी काम कर रखा था। आईपीओ इज अ वेरी टफ एक्सरसाइज। 6-7 महीने आपकी टीम के 1 या 2 मेंबर को फुल फ्लेजेडली सिर्फ वही करना है, और फिर सबको ये लगता है कि भाई अब हमको आईपीओ आ गया, अब मैंने आईपीओ कर लिया, अब मैं आईपीओ कंसल्टेंट बन सकता हूँ, क्योंकि दैट इज हाउ इट इज ग्रोलसम, इट इज वेरी ग्रोलसम प्रोसेस। सो दैट वाज, मतलब हमें उसमें से मतलब एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से हमको एक सोल्यूशन ऐसा मिला जो हमने पिच किया गवर्नमेंट को, ऑनरेबल मिनिस्टर को, एंड ही वाज आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन कि भाई ये करना चाहिए। ओके, तो अभी आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है कि यू मल्टीपल प्रोडक्ट्स विद इन नाबूस? Yeah, so we have multiple products. We are mainly into digitalization process softwares basically, where process is digitalized and then we put some automation and AI on it. So majorly we are into digitalization, भले वो fintech side हो, भले वो business tech side हो, भले वो government tech side हो। ओके, और आप दोनों के लिए क्वेश्चन है, फिनटेक स्पेस में पार्टनरशिप्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके साथ बहुत सारे बैंक के साथ काम करना है, अलग अलग पार्टनर्स के साथ करना है, सो हाउ डू यू गेट इट राइट? क्या करते हो आप, यानी क्या, और क्या सीखे हो उस चीज में से आप विश्वजीत? नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक नॉट जस्ट फिनटेक में ना जतिन, आई थिंक स्मॉल स्टार्टअप के लिए many different types of validations are very important, and having a marquee customer उसके जितना अच्छा कोई validation नहीं होता है। जैसे अभिषेक ने बोला कि काफ़ी मोबिलिटी होती है ये सारे डोमेन्स में, राइट? जैसे कि बैंक है तो सेम बंदा एक बैंक से दूसरे बैंक में जाएगा, एंड बिकॉज वो दूसरे बैंक में गया, ही वांट्स टू ब्रिंग ऑल द वेंडर्स that he's familiar with, right? But in my case, patience is the biggest virtue. काफी times if you want to convince a large bank or NBFC, it will take months, if not longer. And continuously reaching out to people, when to reach out, वो समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HDFC से पार्टनरशिप करना चाह रहा हूँ एंड अगर मैं अभी रीच आउट कर रहा हूँ जब सारा HDFC का दूसरा कॉन्वर्जेशन चल रहा है, तो पीपल आर नॉट फोकस्ड on new conversation, new building, right? So understanding those kind of nuances काफ़ी important है। right people को reach out करना। sometimes what happens, I think एक बहुत ही important मेरा learning रहा कि often times हम एक person को एक business की तरह treat करते हैं। so अगर किसी large business में एक person ने मना किया, that does not mean कि वो business ने मना किया। you go to the next person, to the next person, to the next person until you find the person who understands जो value proposition आपका समझता है and जो आपको chance देने के लिए ready है, right? So ये कुछ tips and tricks थी जो continuously हम apply करते हैं। and nice, very important point. yes, अभिषेक? Partnerships are very important. मतलब to be very honest, अगर आपको business करना है, you cannot do business without partnerships in any case. आप सोचो कि you can do business in isolation, it is not as such possible. So हमने ये सीखा, अभी जैसे हम गवर्नमेंट बिजनेस कर रहे हैं, हमने अभी ऑफ लेट जो एंटरप्राइज बिजनेस से गवर्नमेंट बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट बिजनेस में इट टेक्स नॉट मंथ्स बट ईयर्स टू हैव एवरीथिंग ऑन प्लेटर। राज्यसभा में, लोकसभा में बिल पास कराने से लेके उसके टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स बनाने से लेके एंड मेनी थिंग्स। There are many things which happens once you are working with the government, but that push alone can take you to the next level. So Infosys कहाँ से बना? Everyone knows. मतलब वो एक लेवल पे काम कर रहे थे एज ए सर्विस कंपनी, अच्छा कर रहे थे, but when they came up with their products called Finacle, पूरे वर्ल्ड में उसको पहले पूरे इंडिया में हर बैंक ने अप्लाई किया, then they started. So that's how you grow when you work with government or big corporates. तो जब आप ऐसे अप्रोच करते हो, how do you account for your
बिजनेस, जैसे ट्रेडिशनल एंटरप्राइज में इमीडिएट रेवेन्यू आता है, सो you can allocate a lot of resources. Government में you are waiting for longer thing. So how do you adjust from that? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बनता जाता है सर. मतलब it's you have to have all the patience and all the thought process that this is the best thing. What I am doing, what I am delivering is the best thing. If it is not the best, I am putting my efforts to make it the best. So there are multiple other vendors who may create that particular platform in a better way. I won't disagree to that fact. I can't say कि मेरा tech सबसे अच्छा है, but putting our efforts to the tech, putting the manpower behind the execution of that tech is very important. Okay. और अभी हम अहमदाबाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरी दुनिया का फोकस आ रहा है गिफ्ट सिटी में. अहमदाबाद, गुजरात बिकम्स अ फिनटेक हब. विश्वजीत, आपके बिजनेस में गिफ्ट सिटी के साथ क्या एंगेजमेंट होता है? व्हाट आर यू सीइंग? जतिन, मैंने गिफ्ट सिटी एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ सेटअप किया गया है, राइट? सो डायरेक्टली ऑल्दो हम टेक्स में ऑपरेट करते हैं, ऑल्दो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, गिफ्ट सिटी हमारे पाथ में डायरेक्टली कहीं पे नहीं आता है. बट द बिजनेसेस दैट वी वर्क विथ, राइट, जैसे कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स, एंजल हो गया, IIFL हो गया, उनके फैमिली ऑफिसेस भी है, राइट, जीरोदा हो गया, उनके फैमिली ऑफिसेस है. So what I understand right now is there's a lot of benefit if you are setting up family offices in Gift City. I think as a Ahmedabadi, I feel really proud about it. I think just as a startup, we are always work in progress. Same way as a society, we are continuously work in progress. And I think एक बहुत ही ambitious goal set किया है government ने. And I think oftentimes people criticize के Hong Kong नहीं बना या Singapore नहीं बना, but I think you should have you were not there for 30 or 40 years when they were building it, right? So we are building it right now, and I think we have the right infrastructure, right people with right mindset, best infrastructure है पूरे इंडिया में हमारे पास, fantastic colleges है, talent है, right? So I think we have the best shot at it. अभिषेक, गिफ्ट सिटी के साथ क्या एंगेजमेंट होता है आपका? गिफ्ट सिटी के साथ हम लोग काफी एंगेजमेंट करते हैं विद आवर सॉल्यूशंस. Many buildings in Gift City are using our solutions. Apart from that, Gift provides us the global network. So अभी हमने गिफ्ट में एक बैंक ऑफ अमेरिका में एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन किया. They were so much happy. So the all of Bank of America, मतलब there are more than 700 odd branches or offices where we are implementing the same solution. So that is the kind of approach which we were never thinking. And जिस तरह से सर ने बताया कि भाई डेवलपमेंट फेज हमने कभी देखा नहीं है, तो जब हमने BKC, हम बाहर नहीं जाते, हम इंडिया में रहते हैं, तो BKC इज द फाइनेंस हब राइट नाउ फॉर द होल ऑफ इंडिया. सो BKC जब बन रहा था, जब इनिशियल 3-4 बिल्डिंग आई थी BKC में, तो जो हालत थी BKC की, उससे 5 times बेटर पोजीशन पे गिफ्ट सिटी है आज की डेट. And with the growing people coming to Gift City and the kind of environment we provide in Gujarat, business mindset बहुत clear होता है. Strikes हमने कभी सुनी ही नहीं, जो हर स्टेट में, I have been to many states, so हर स्टेट में that is a first thing, मतलब कुछ भी होने वाला है उससे पहले स्ट्राइक हो जाती थी या कोई पॉलिटिकल अनविलिंगनेस होती थी. So that way I think Gift City will be the best place to work maybe 10 years from now. Okay, very interesting. मेरा एक बेनिफिट क्या होता है कि बहुत सारे लोग गिफ्ट सिटी आते हैं, फिर जो ना वो सोच रहे कि आ ही रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई स्टेट में एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम में क्या है, एंड देन दे डिस्कवर द स्ट्रेंथ ऑफ ईच आई. तो मेरे को आउटरीच नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अहमदाबाद आएंगे, गांधीनगर आएंगे, फिर दौड़ेंगे चलो इस स्टेट में और क्या हो रहा है. पर ईचाई के लिए तो ना अहमदाबाद चाहिए ना गांधीनगर चाहिए, ऑल ओवर वर्ल्ड ईचाई कर रहे हो आप. तो हाँ, पर गिफ्ट सिटी से क्या वो सेम लोगों को अपने सेटअप में मिलना हो जाता है. बिल्कुल. विश्वजीत, आपने बताया कि जीरो था इन्वेस्टमेंट आपने किया था. When did that happen? How did that happen? And what changed after that? Right.
I think जैसे हमने PMF का बात किया वैसे there is also another terminology called product led growth, right? And Zerodha is a bootstrap business and completely product led growth पे build business है, which means आपका product आपको grow करने में help करता है. More people use it, word of mouth, referrals, जिसके through they bring in new customers, right? So you're not spending on advertisements and things like that, right? That's how they have built business. So मेरा understanding ये था कि whenever I want to raise funds, I don't want to raise funds to spend money and acquire customers. If I can do product led growth and that's how I can build product, वो मेरा preferable way था, and hence I found the right partners in them. The way it happened is they were earlier they used to have only 1 or 2 people team. We raised funds in 2019. At that point, they had only invested in 10 or 12 startups. We were the first startup outside of capital market ecosystem. Up until that point, they were only investing in stock market में जो businesses थे, small case हो गया, Digio हो गया, etc. They continuously look out for good product-led growth businesses. So how do you get to know about ऐसे businesses? Usually customer testimonials. कोई Zerodha में कोई employee use कर रहा है जो जाके बात करता है हमारे product के बारे में. कोई customer है जो email करके बोलता है कि भाई ये टेक्स्ट प्लेटफॉर्म है, मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, नितिन कैन यू हेल्प सॉल्व इट, राइट? इफ़ यू सी काफ़ी सारे बिजनेसेस उसके बाद में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये प्रिंसिपल्स पे इन्वेस्ट किया है. सो दैट्स हाउ वी एंडेड अप रेजिंग फंड्स. व्हाट चेंज्ड इज I think टाइमिंग के पॉइंट ऑफ से भी जतिन वी गॉट रियली लकी बिकॉज दिस इज राइट बिफोर कोविड एंड फिर कोविड हुआ, एवरीबडी वाज एट होम, किसी को बाहर खाने का खर्चा नहीं था, ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं था, ऊबर का खर्चा नहीं था, तो सबने और एंड दूसरा के ऑफिस में नहीं थे तो नोबडी वाज मॉनिटरिंग यू कि क्या कर रहे हो, राइट? सो लॉट ऑफ पीपल ओपन डीमैट अकाउंट. इंडिया में एक्टिव डीमैट अकाउंट्स वेंट फ्रॉम 2 crore to 17 crore in that 3 or 4 years time. Mutual funds के inflows grew 7-8x, right? So Zerodha also grew along with it. हमने जब funds raise किया था, they were 250 people, 400 crore in revenue. Today they are 1,000 people, 8,000 crore in revenue. So we were direct beneficiaries of it. We get lot of customers referred to us from Zerodha, and then we were also smart के हमने वो replicate किया, उसको use करके, वो marquee customers को use करके we went and tapped into all the big brokers, and that was a very important growth hack for us. Which allowed us not to raise a lot of money and spend it on customer acquisition. करेक्ट. अभी हमें रिकॉर्ड करें मार्च 2026 में, अभी AI हो रहा है पूरा. Absolutely. बहुत सारे हम लोग सब दोस्त लोग बैठे थे, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि जो 2005 में करियर की शुरुआत करी थी, एक एक्साइटमेंट होती है कि अब क्या कर सकते हैं. Absolutely. सिमिलर काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इज कमिंग बैक. यू फील के यू कैन डू वंडर्स with the knowledge that you have acquired in last 20 years. Absolutely. So what is happening in the context of AI in your business, and what are you really looking forward to? Abhishek, we start with you this time. So again, जब मैंने टेक चालू किया था तो आई वाज अ रैंक होल्डर चार्ट अकाउंटेंसी में, बताया था. आईटी में मेरे सबसे कम नंबर थे, मेरे को जस्ट पास किया था उन्होंने 40 नंबर देके. ठीक है. सो आईटी मेरा कभी कप ऑफ टी नहीं था व्हेन आई स्टार्टेड दिस आईटी बिजनेस. एंड सेम वे AI was not what I thought of, या मैं मॉडल्स बना सकूं या ऐसा कुछ कर सकूं, बट आई ऑलवेज न्यू कि भाई ये इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करता हूं तो काफी सारी चीजें. अब जैसे हमारे ही बिजनेस में देखें तो जैसे हम लोग इस साल सोच रहे थे हम लोग को 500 लोगों की टीम तक पहुंचना था, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बिजनेस विच वी आर, द काइंड ऑफ कोड्स विच वी हैव टू राइट राइट नाउ. We are just looking at 70-75 people team who are more aligned, who are using AI at a very good pace. वैसे ही AI को using in the other domains of my business like accountancy, like we are using it very highly in right now in sales and marketing. So जब AI को आप use करते हो तो आपको पता चलता है कि काफी सारी, आपको सिर्फ चीज आनी चाहिए तो AI can give you the answers. But again, using AI as a public platform is a very clear no for us. We always we are very clear. If we want to build a agent, let's make it on our own platform rather than using APIs and just doing it. Because जब मैं वो दे रहा हूँ तो वो already जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहा है मेरे भी मॉडल पे. And I don't want कि भाई कुछ ट्रेड सीक्रेट्स या कुछ जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उसके सीक्रेट्स बाहर नहीं जाने चाहिए. Okay. विश्वजीत.
I was trying to think कि क्या analogy है. I think AI is both super exciting and frightening at the same time, right? Because आपने जैसे बोला कि हम लोग 2005 वाली बैच है, तो हम लोग काइंड ऑफ हम लोग स्टक इन द मिडल है. मैं अपने डैड को बोल रहा था कि गुड कि आपको तो कभी ए के बारे में सोचना नहीं पड़ा. हम लोग ऐसे स्टेज पे कि जब ऑफ कोर्स हमने आगे के जो वेव्स थे, इंटरनेट का वेव था, स्मार्टफोन का वेव था, उसको लेवरेज करके हमने अपने बिजनेसेस बिल्ड किए. बट आज वी फाइंड आवरसेल्व्स इन मिडल ऑफ काइंड ऑफ कि हम लेगेसी बिजनेसेस है, नॉन नेटिव एआई बिजनेसेस है. तो आई थिंक व्हाट आई विच इज़ व्हाई आई सेड कि both exciting भी है and काफ़ी frightening भी है. My good part of last 6 months is figuring out my business, how I can leverage AI, how as a team and a founder we pivot into being a native AI, so we don't do the same things that we were doing before, but just use AI to as a catalyst and fasten things up. Because I think if we solved yesterday's problem using AI, that would be a wrong way to look at it, right? So I'm super excited about it. We are doing a lot of things. हमारा डोमेन वैसा है, काफ़ी टेक्स्ट हैवी डोमेन है, तो इट कैन बी AI is really complementary to our domain also. So really excited about it. Let's hope that we are able to pivot and become a native AI company. Okay. Abhishek, when you start a business, बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं, कहीं कहा गया ये क्यों दे रहे हो आप एडवाइस, फिर आगे जाके रियलाइज होता है ये एडवाइस तो बहुत करेक्ट थी. व्हाट वाज दैट फॉर यू? So again 2017 we got an offer मतलब from Jio. तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने मेरे को एडवाइस दी कि यार you should look at it, at least you should look at it, you should deep dive into it. But ये 25 साल का लड़का है, मैं 25 साल का था, मेरा जो मतलब मेरे पूरी टीम में जो सबसे हाईएस्ट एज थी वो मेरे ब्रदर की थी, दैट इज 28. सो एट दैट टाइम वी थॉट यार क्या है ये 50 करोड़ में मेरे को खरीदने की बात कर रहा है, मैं ये 2000 करोड़ की कंपनी बनाने की बात कर रहा हूँ. व्हाई शुड आई सेल ऑफ दिस? अगेन एट दैट टाइम आई डिडंट हैड दैट फ्रेम ऑफ माइंड. लोगों ने समझाया था, मेरे मेंटर्स ने समझाया था, बट आई डिडंट हैड दैट फ्रेम ऑफ माइंड दैट आई विल बी सिटिंग नेक्स्ट टू Akash Ambani and presenting things regular basis. ठीक है, I will be part of that big network for at least 3 years. I thought कि यार 3 साल अभी क्या जॉब थोड़ी ना करनी किसी के अंदर. So that was one thing which I always think कि अगर उस टाइम पे किया होता, I don't know कि वो सही था गलत था, that is a separate thing. But I should have taken the advice and at least explored that opportunity rather than just saying straight no to those guys. Very good point. And Vishwajit, what was that for you? Okay, initially like ठीक है यार, but now yeah, that was interesting. No, being a bootstrap founder, one thing internally from team, family, other people continuously get asked is why not raise capital, right? Why so risk? Why so capital averse? That is one thing that I most frequently get asked, and I think oftentimes I also ponder upon it, right? A lot of young founders who come to me for this advice, I oftentimes tell them I'm not the right person. But I think one thing, while not having capital that you could freely spend is oftentimes challenging, but I think मेरे हिसाब से startups वैसे build होने चाहिए, frugal manner में, constrained manner में, because that's when you think outside of the box, you innovate. When resources are amply available, oftentimes you become complacent. So I take it with a pinch of salt. And I think हम लोग आज as a team वो bets ले पा रहे जो हमें लेनी है, and not that somebody else wants to take. Which is I think the other positive side of it. So you are like a seed strap, small seed raise के उसके बाद raise करने की जरूरत नहीं. Absolutely. But do you see now with this AI wave that you see you can do far bigger things? What is the state of mind at this point? No, absolutely. I am, like I said, I'm not capital averse. In fact, I strongly believe in capital markets. In fact, मेरे सारे customers वहीं से आते हैं. So मेरा business capital market से चलता है. So I'm not capital averse. But at the same time, I also feel that capital cannot, capital solution नहीं है अगर आपके पास product market fit नहीं है.
कैपिटल सोल्यूशन नहीं है, अगर आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, राइट, वो ऑगमेंट कर सकता है उसको, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, या उसको अगर नहीं है ऑर्गेनिक ग्रोथ तो उसको फिल नहीं कर सकता है वो, राइट. बट from AI point of view, I think everything AI points to is absolutely opposite, right? Like Abhishek said, I always had a small team. You know that we are 45-50 people. So this, in fact, further strengthens that thought process. With fewer people, you can build big businesses. You can take big bets. So that's very exciting about it. So I don't think AI necessarily requires a lot of budget. In fact, if not anything else, other way around. So काफी सारे हमारे audience students हैं. तो I would like to tell them कि now एक Y Combinator का मैंने आपको भी बताया था कि एक I really liked one statement that one of the partners said कि पिछले 15 साल से जो businesses uninvestable हो गए थे, because उनका 15 साल का हिस्ट्री है, तो वो सारे businesses again investable हो गए, right? And I think that's मेरे हिसाब से youngsters के लिए सबसे बड़ी opportunities है. अभी if you were to start a business again in a fintech space 26 में with what business you will start, Abhishek? In this fintech space. Now you know कि ये बना सकते हो, ये कर सकते हो. With you have the knowledge कैसे कैसे होता है, तभी कौन सा business start करोगे? Something on the supply chain part. Supply chain finance बहुत कुछ हो गया है, but supply chain में fintech मतलब fintech build करना चाहेंगे जहाँ पे you can actually create values for the end consumers. क्योंकि at the end of the day you need to figure out end consumer को जो benefit है वो मिलना चाहिए. We have been a B2B kind of startup since the inception. So इस बार B2C की साइड में, supply chain साइड में we will be looking at. Okay. And Vishal, if you were to start a business in 26, क्या? I have two types of answers. So एक having the hindsight, last 10-11 साल में business build किया, तो जो थोड़ी youthful exuberance है उसे step away करके जो basic matrices है, TAM क्या है, touch points क्या है, lifetime value of customers क्या है, so I would pay a little more attention to that because those are very important and those are very difficult to fix. Those are things outside of your control, right? एक वो चीज़. I think last 4-5 years से we want to take a bet, but we are reluctant to take is a neobank. Okay. Primarily because right now India में neobank you can only build it on a traditional bank, and अगर आप traditional bank पे build करते हो तो सारा मोट उनका है, आपका नहीं है, आप just reseller हो. Revolut हो गया, New Bank हो गया, काफ़ी सारे अच्छे neo banks है. We are still using dated banking interfaces and bank services. So that's a very exciting space. Okay. The last question. Abhishek, if you were to describe your entrepreneurial journey in 1 or 2 words, what would that be? Fantastic. Wow. Yes, Vishwajit. मेरे को एक मूवी का नाम याद आ रहा है, True Grit. Okay, awesome. Thank you so much both of you. This was super fun. Thank you. Absolutely. Thank you for having. और देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो LJ 90.8 FM.